Good afternoon, everyone, and welcome to Smart Money Foundation. Before we begin, let me set the tone for this session. This is not a sales webinar. This is not about complicated financial products. And this is definitely not for finance experts only. This session is for normal working people who earn, spend, save, and feel unsure if they are doing it right. Today is about clarity, confidence, and control over your everyday money decisions. We'll talk about saving without stress, spending without guilt, emergency and medical safety basics, and the habits that quietly decide our financial future. This session is curated by me, Radhika Kotha, founder of Atulit Academy, and we focus on clarity, communication, and ownership, both in work and in life. Joining me today are two powerful voices who look at money from different but complementary angles. First, we have Mr. Hiralal Bhamre, CEO and Managing Director of Vital Funds. He brings deep expertise in investments, risk planning, and long term financial security, but with a strong belief finance must be simple to be useful. Welcome, Mr. Bhamre. And joining Yes. us from Atulit Academy is Ms. Megha Pawar, a communication and negotiation skills expert. Megha works with professionals and families on how mindset, communication, and everyday conversations influence decisions, especially money decisions. Welcome, Megha. So, yes, welcome to you, Hiralal sir. Glad Yes. that you are a part of our entire session today. And welcome, Megha. Glad that you too are a part of our session today. Thank you, Radhika. Thank you very much. Yes. Thank you. So, let's start with a simple but honest question. People earn regularly, yet many feel that they are still financially unsafe. So, Mr. Bhamre, from your Yes. experience, why does this gap exist and what can be done about this? Yes. First of all, thank you very much and welcome to all the audience. The reason behind people are earning very well, but उनकी जो savings होती है वो काफी irregular होती है. They started somewhere to invest or save a certain amount of month, but वो continuity में नहीं होती है. And that's the reason spending के time काफी guilt feel होता है. क्योंकि plan for the X amount और spending is around 1.5x or 2x. Then सारा बजट ऊपर नीचे हो जाता है. समटाइम्स इमरजेंसी जब आती है तो इमरजेंसी के टाइम अपने पास बिकॉज ऑफ इरेगुलर सेविंग पैसा नहीं होता है. दैट्स द रीजन वी स्ट्रांगली रिकमेंड जो भी सेविंग्स करना है, जो भी इन्वेस्ट करना है, दैट्स सपोज टू बी अ रेगुलर मैनर करेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें बैलेंस बना रहेगा, इमरजेंसी में काम आएगा, या जो भी हमने प्लान किया है उस टाइम हमें बेनिफिट्स मिलता रहेगा. यहाँ पे कुछ मैं मनी रूल्स ऐड करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल सबसे पहला मनी रूल मैं ऐड करूँगा एज एन इमरजेंसी फंड और वी कैन से कंटीजेंसी फंड. हमारी जो मंथली एक्सपेंसेस है उसका 3 गुना या 6 गुना हमेशा लिक्विडाइज होना चाहिए. इट्स सपोज टू बी हैंडेड मिनिमम 3x up to 6x. If I am spending a lakh rupees a month, तो मेरे पास हमेशा 3 से 6 लाख रुपए होना चाहिए. These are not the investments, these are not the savings. Always be in a hand. तो वो एक बेनिफिट होता है. दूसरा मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करता हूँ, हम जो भी स्पेंड करते हैं अदर देन माय रेगुलर FMCGs एंड अदर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, एक अमाउंट यदि मैंने स्पेंड की तो एक अमाउंट मेरा सेविंग भी होना चाहिए एक्स्ट्रा. से एग्जांपल आई गो फॉर द शॉपिंग, आई बाय अ ड्रेस,
कॉस्टिंग ₹5,000। तो एंड ऑफ द मंथ हमने ये ध्यान में रखना है कि 5,000 सपोज टू बी सेव, क्योंकि आज जो मैंने खर्च किया है, जो स्पेंड किया है, जो चीज ली है, साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद वो तो वापस लेनी है, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। मेरा एक्सपेंस नेचर, मेरा अर्निंग वो तो लिमिटेड है, बट वो चीज़ तो मुझे खरीदनी है। जो पैसा मैंने आज खर्च किया उतना ही पैसा यदि मैंने बाजू निकाल के रखा है तो नेक्स्ट टाइम परचेस करते टाइम मुझे दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो रिकमेंडेशन, जो आज आप एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल के लिए खर्च करते हो उतना ही पैसा आप सेविंग करो। वन मोर रूल मैं बताता हूँ, जो भी आप अर्न करते हो, से एग्जाम्पल 100 रुपीज, आउट ऑफ 100 you spend 50 rupees on your regular needs, daily expenses, monthly expenses, जिसको हम FMCG बोलो या बहुत सारे लोग पूना से तो हर महीने का खर्चा किराना बोलो। अप टू 30% आप अपने शॉपिंग्स, अदर एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल नीड्स उसके लिए खर्च करो, और एटलीस्ट आपकी 20% सेविंग होनी चाहिए। इट मीन्स इफ यू अर्न ₹1,00,000 a month, 50,000 रुपये आपके खर्चे पे चले गए, 30,000 आपके वॉन्ट्स में चले गए, लाइफस्टाइल एक्सपेंस चले गए, वीकेंड घूमना फिरना उसके लिए चले गए, शॉपिंग के लिए चले गए। 20,000 सपोज टू बी इन्वेस्ट एटलीस्ट। 30,000 में आपका हाउसिंग लोन भी आता है। हाउसिंग लोन नॉट इन द 20,000। बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है मतलब वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि वो मेरी नीड है, मुझे घर रहने के लिए चाहिए। यदि मेरी घर की कीमत लोगों के लिए करोड़्स में है, मेरे खुद के लिए उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि मैं रहता हूँ। सो वो नीड्स में जाएगा, दैट सपोज टू बी इन द 30% ब्रैकेट। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, इफ यू डोंट हैव योर ओन हाउस, आप रेंट पे रह रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से एक ख्याल में रखना हमेशा, आपका रेंट 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। से एग्जांपल, आप ₹1,00,000 मंथली अर्न कर रहे हो, आपका रेंट सपोज टू बी बिटवीन 30 to 35,000। बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि मैं ₹1,00,000 कमा रहा हूँ तो मैं 50,000 4 BHK 3 BHK रो हाउस में एंजॉय करूँ, क्योंकि फ्यूचर में हमें अपना खुद का घर भी खरीदना है। सो दिस इज वन मोर सजेशन, इफ यू डोंट हैव योर ओन हाउस, रेंट पे हो तो आपका रेंट नॉट मोर देन 1/3। क्लियर? वन मोर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, बहुत लोग चाहते हैं कि घर हो गया, सबको जगह इच्छा, अच्छा खासा जॉब है, रुपीज इन लैक्स कमाता हो, घर के सामने चलाने के लिए कार भी तो होनी चाहिए। और इफ यू रियलाइज कोविड के बाद हर कोई अपना 2 व्हीलर चेंज टू द 4 व्हीलर्स, और आप रोड पे देखते भी हो गए आज के दिन में ट्रैफिक कितना बढ़ती है, एंड इट इज अ सिनेरियो इन एवरी सिटी, नॉट ओनली इन पुणे मुंबई। तो यहाँ पे एक सजेशन क्या है हमारा इन अ फाइनेंशियल एंगल, आपका डाउन पेमेंट एटलीस्ट 20% होना चाहिए। डोंट गो 100% लोन, 20% मैक्स विल बी योर डाउन, सॉरी एटलीस्ट 20%। बाद में आपका जो लोन का टेन्योर हो, हम रिकमेंड करते हैं मैक्स 4 ईयर्स। बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी आपको रिकमेंड करते हैं 7 ईयर्स, क्योंकि अपना ईएमआई कम हो जाता है। बट ये कार लोन जस्ट लाइक एन योर पर्सनल लोन, रिकमेंडेशन मैक्स 4 ईयर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी जो मंथली अर्निंग है उसका 10% मैक्स ईएमआई। तो यदि मुझे लगता है कि मेरा ₹1,00,000 जो सैलरी है और मुझे 20-25 लाख वाली बड़ी एक्सयूवी कार चाहिए जिसका ईएमआई 25,000 रुपये आ रहा है, तो इन फाइनेंशियल प्लान ये आपको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि जो 50-30-20 वाला रूल मैंने बताया इससे बाहर जा रहा है। तो while you are buying a car, recommendation EMI is supposed to be less than up to 10%. Am I clear?
Yes. और जैसे लीना मैडम यहाँ पे देख रहे हैं, सीनियर और मे बी सीनियर सिटीजन, जस्ट एडिंग फॉर द रिटायरमेंट कॉर्पस, आपका जो भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस होगा, रिकमेंडेशन 4% पर एनम टू बी विड्रॉल एज अ पेंशन। इट मीन्स आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 10 करोड़ बना है, तो आपका एनुअल विड्रॉ विल बी 40 lakhs। So can you please repeat this once again? यदि आप रिटायर होने जा रहे हैं, काम बंद होने वाला है, आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस आ रहा है, मान के चलो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 10 करोड़ बन चुका है, उसका 4% पर एनम विड्रॉल होना चाहिए। 10 करोड़ का 4% इट विल बी अराउंड 40 lakhs। इससे क्या होगा, आपका कॉर्पस कभी भी ड्रेन आउट नहीं होगा। आप 80 साल जियो, 90 साल जियो, 100 ईयर्स जियो, आपका कुछ ना कुछ कॉर्पस नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन होगा। इवन दो इफ यू कीप योर मनी इन द गारंटेड प्रोडक्ट्स लाइक ए बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, क्योंकि बैंक एफडी में आज रखोगे तो बैंक एफडी नॉट गिविंग अ गारंटी ऑफ मोर देन 5 years, बट हमें तो डिकेड्स तक जीना है, लंबा जीना है। तो यहाँ पे और एक रूल क्या हुआ, जब आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाता है तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड डोंट विड्रॉ मोर देन 4%। इट मीन्स मेंटेन योर लाइफस्टाइल। यदि आपको लगता है खर्चा ज्यादा है तो रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ा दो, 10 की जगह 15 बनाओ और आज से बनाना चालू करो, राइट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें और एक पॉइंट ऐड करूंगा। आपको लगता है कि बहुत सारे न्यूज मिलेंगे आपको, मैं इतना रिटर्न देता हूँ, इतने दिन में आपका डबल होगा, इतने दिन में आपका ट्रिपलेट होगा। सिंपल मैथमेटिक्स फार्मूला ध्यान में रखना, रूल ऑफ 72। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए आपको पाई मालूम होगा, 22/7 या 3.14। लाइकवाइज इन फाइनेंस देयर इज अ रूल ऑफ 72। यदि कोई बोलता है कि मैं 7 साल में डबल कर दूंगा, 10 साल में डबल कर दूंगा, बैक ऑफ द माइंड आपने कैलकुलेट करना है 72 divided by 10 years, return will be 7.2% per annum। वाइस वर्सा कोई बोलता है मैं आपको 15% रिटर्न देता हूँ, 20% रिटर्न देता हूँ, आप कैलकुलेट करो बैक ऑफ द माइंड में 72 divided by 20, क्योंकि वो 20% कमिट कर रहा है, तो आंसर आएगा 3.6। इसका मतलब 3.5 साल में आपके पैसा डबल होगा। आप खुद को सवाल करना, इज इट पॉसिबल, गो हेड, कोई सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको खुद को डाउट है ये नहीं होगा, डोंट गो हेड, किसको सवाल करने की पूछने की जरूरत नहीं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। लाइक मेडिसिन, डॉक्टर्स, हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्स कंडीशन एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे फाइनेंस है, सम लॉजिकल खुद ने भी सोचना है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड रूल ऑफ 72। तो लाइक मैम आस्क मी अबाउट द फाइनेंस और ये चैलेंजेस क्यों आते हैं, ये छोटे छोटे बेसिक रूल्स है जो हमने अडॉप्ट कर लिए, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई फाइनेंस का चैलेंज आएगा। फॉर दिस पॉइंट आई एम कंक्लूड हियर मैडम। Thank you so much, sir. या It was very insightful. तो मेघा मैम नेक्स्ट आपके लिए है। सो when you hear all this that has gone on just now, what do you notice from a human behavior lens? क्योंकि हम सुनते हैं पर करते नहीं हैं, so why like that? What I noticed from a human behavior point of view is that most money stress comes from uncertainty. When people feel they may have overspent, they avoid thinking or talking about it. Nowadays, most of us shop online, and once we open that app, we continue to add one item after another. Somewhere we know we are crossing our budget, but we still avoid checking the total amount we have spent. And that avoidance doesn't reduce stress, it actually increases anxiety. Oh, Thank you. Thank you yeah. so much. So, avoidance. Basically, we just switch off that, or put it in a compartment where हम सोचते ही नहीं है कि, हाँ खर्च कर रहे हैं तो let us block that. Yes. Okay. Fine. Excellent. Thank you so much. So let's talk about everyday habits now. Mr. Bhamre,
What are the most common saving or spending mistakes you see in households, and what are the small things that we can do to save? ट्रू। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, यदि आपको सेविंग्स करना है तो सेविंग्स सपोज टू बी विदाउट ट्रेस। जो भी सेविंग आप करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे वो विदाउट ट्रेस होनी चाहिए। इसका मतलब सेविंग शुड बी ऑटोमेटिक, वो आपका पेनफुल नहीं होना चाहिए। करना है इसलिए करो नहीं, सपोज टू बी ट्रेस फ्री। वो कैसे होगा? जो भी आपकी इनकम आती है कल के लिए पहले सेविंग करो, बाद में स्पेंडिंग करो। आज के क्या होता है, जैसे मैम ने बताया, लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, सैटरडे संडे घर में खाना नहीं बनाते हैं, मॉल कल्चर है। होता क्या है, जिस दिन सैलरी होती है सबसे पहला क्रेडिट कार्ड का पैसा चला जाता है। जो बचा उसमें बचे हुए 20-25 डेज या रिमेनिंग पीरियड ऑफ द मंथ निकलता है। सेविंग कहां से करोगे? तो मेक अ हैबिट, सेविंग फर्स्ट देन स्पेंड। सेविंग शायद छोटी हो, स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। कोई जरूरत नहीं, कोई सेविंग वाला आपको पूछता नहीं है आपने लाखों में हजारों में करना है। यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज अ मंथ, बट स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट ऑलवेज अ बेनिफिशियल। और ये जो सेविंग आप स्टार्ट करोगे छोटी अमाउंट, उसको ऑटोमेशन में डाल दो। जैसे अपना लोन का ईएमआई जाता है, क्या हम ईएमआई स्किप कर सकते हैं? नहीं। स्किप करने की कोशिश की तो आगे हमें चार्जेस लगते हैं। लाइकवाइज इन्वेस्टमेंट की, सेविंग्स की हैबिट बना दो। इट्स सपोज टू बी ऑटोमेटिक। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी हो, आपके इक्विटीज में एसआईपी हो, या मंथली डेबिट हो, या आप खुद कर रहे हो, तो प्रैक्टिस बना लो। उस दिन वो पैसा जाना ही चाहिए। इन शॉर्ट, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग। क्योंकि आप सोचते रहेंगे कि मैं हर महीना 10,000 के हिसाब से 1.25 लाख रुपया पर एनम सेविंग करूंगा। शायद वो 1.25 लाख आपसे सेविंग नहीं होगा, बट 10,000 पर मंथ हैबिट यदि बना दी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लॉजिकली वेरी सिंपल। 1.25 लाख निकालना बहुत मुश्किल है, बट 10,000 अ मंथ निकालना बहुत आसान है। सो स्टार्ट स्मॉल एंड मेक इट अ ऑटोमेटिक हैबिट। एग्जाम्पल बताओ, यदि आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो विदाउट एनी ट्रेस, नॉर्मल छोटी सी अमाउंट 3,000 अ मंथ, आई एम टॉकिंग ओनली 3,000 अ मंथ। यदि 30 साल करते हो आज, यदि मैं आज का ऑडियंस का एवरेज एज 30 पकड़ू तो 60 में रिटायरमेंट होता है, 30 साल में 1 करोड़ बन जाता है। कैन यू इमेजिन? जो मैंने रिटायरमेंट कॉर्पस 4% का कंसेप्ट बताया, 1 करोड़ बन जाए तो हर महीने का 4 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाता है ना। 4 लाख रुपए पर मंथ, इट इज मोर देन 30,000 रुपीज पर 4 लाख रुपए पर एनम, इट मीन्स 30,000 पर मंथ, मोर देन 30,000। तो इसका मतलब इफ यू सेव रुपीज 3,000 अ मंथ फॉर द नेक्स्ट 30 years, अर्न रुपीज 30,000 पर मंथ होल लाइफ। सिंपल फॉर्मूला। तो छोटी अमाउंट से आप स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ऐड और एक पॉइंट करूंगा, जो स्पेंडिंग आप कर रहे हैं वो स्पेंडिंग भी होना जरूरी है, और वो स्पेंडिंग विदाउट गिल्ट होना चाहिए। क्योंकि मुझे सेविंग करना है इसलिए मैं पैसा बाजू में रख रहा हूं, नॉट नेसेसरी। हम कमा रहे तो किसके लिए कमा रहे? खुद के लिए तो कमा रहे। क्या सिखाया है हमें? आज जियो कल का मालूम नहीं, बट कल के लिए प्लान करो, क्योंकि जी गए तो कौन संभालेगा? दैट इज ऑल्सो देयर। तो स्पेंडिंग भी होना चाहिए, बट अनप्लान्ड स्पेंडिंग इज रॉन्ग। कल जाके आप शॉपिंग में गए, जस्ट कोई चीज अच्छी लगी, पर आज मॉल में जाते हो तो मॉल में आपको बाइक कार का भी शोरूम होता है। अच्छी पसंद आ गई कार, इसलिए क्या आप बुक कर दोगे? विदाउट प्लान हो तो पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। लाइकवाइज आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए एज पर योर नीड, एज पर योर वांट्स एंड एज पर योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। Whenever your future plan, your spending becomes guilt free.
right? This was the addition from my side. If anything else was Yes. So adding on to that, Megha, the guilt that Mr. Hiralal is talking about, Bhamre sir is talking about. So where do communication and mindset show up here? Human behavior. We are again going back to yes, human behavior. See, Radhika, I would like to resonate with Sir, whatever Sir said just now. Many people feel guilty after spending, not because the amount was huge, but because the decision didn't feel clear to them. And spending guilt usually comes out from unclear priorities. We could take something simple here. I will take some Hiralal's ने भी बहुत example दिए. I would also like to add something here. yes, A simple one, like buying a large tub of popcorn at movie theater. हम सब जाते हैं movies के लिए and we know how costly it is. Somewhere in your mind, you know that if you haven't clearly decided why you are okay spending on it, true. maybe for the experience or a treat, you keep questioning it later. But when your internal communication is clear and you have already told yourself, this is my enjoyment expense, the guilt disappears. That's why this clear internal communication is very helpful because it reduces that regret and it helps us a lot. थैंक यू सो मच. तो अभी लेट्स मुद्दे पे आते हैं. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू भामरे सर इज इमरजेंसीज चेंज एवरीथिंग इन आवर लाइव्स, करेक्ट? Always. बोल के नहीं आता है इमरजेंसी, राइट? सो व्हाई इज इमरजेंसी एंड मेडिकल प्लानिंग ऑफन इग्नोर्ड अंटिल इट इज टू लेट? What are the few investments that we can start early? इसके ऊपर थोड़ा we need some light on this. Yes, very valid point और valid question. जैसे शुरू में मैंने बताया था आपको 7 मनी रूल्स में 3x 6x आपका एज अ कंटीजेंसी इमरजेंसी फंड आपके मंथली एक्सपेंसेस के 3x अप टू 6x ऑलवेज होना चाहिए. ये यदि आपने प्लान करके रखा है तो इन केस ऑफ जॉब लॉस, in case of accident, in case of any absentee because of any uncertain uncontrollable scenarios, वो जो 3 से 6 महीने का आपका पैसा ना वो आपका मंथली एक्सपेंसेस पे प्रॉब्लम नहीं करता है. तो आपके पास हमेशा वो फंड्स अवेलेबल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन निगोशिएबल रूल होना चाहिए. जो भी मैं हर महीना खर्च करता हूँ या होता है उसके 3x to 6x ऑलवेज बी इन हैंड है. मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि वो आप कोई इन्वेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं है उसका. चाहे तो आप सेविंग अकाउंट में रखो. बहुत सारे बैंक्स का आज फ्लेक्जी एफडी का ऑप्शन रहता है. सेविंग में आपको अप टू 3% रिटर्न मिलता है, फ्लेक्जी एफडी में आपको अप टू 5 to 5.5% मिलता है और वो इमीडिएटली आप विड्रॉ भी कर सकते हो थ्रू एटीएम इटसेल्फ. तो ये नॉन निगोशिएबल रूल होना चाहिए 3x to 6x पर मंथ और ये इजीली एक्सेसिबल है. बहुत सारे लोगों को आज गोल्ड से प्यार है. तो यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड कर देता हूँ कि जब आपको बैंक में नहीं रखना है तो फिक्स गोल्ड लाइक ए कॉइन या बिस्किट बाजू में रखो क्योंकि वो इमीडिएटली इनकैश होता है. इमरजेंसी आने पर आप मार्केट जाओ, ज्वेलर के बाजू आपको कैश मिल जाता है. बट कीप असाइड, वो गोल्ड का ना ज्वेलरी होना चाहिए ना कोई फ्यूचर प्लान के लिए गोल्ड के लिए होना चाहिए. वो इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, राइट? वो पैसा आपको काम में आएगा. लाइकवाइज इमरजेंसीज आती है इन केस ऑफ मेडिकल, एक्सीडेंटल, अनसर्टन जो भी कुछ है लाइफ में उसके बारे में. उसके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होना ही होना है, जिसको हम मेडिक्लेम बोलते हैं, कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का तकलीफ ये है, वो लोग बोलते हैं कि मुझे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कवर है इसलिए खुद का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते. सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पे. अभी हमने इमरजेंसी की बात करते टाइम को एक बात कही कि जॉब लॉस. यदि तुम्हारा मेरा जॉब ही चला गया तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कहां से आएगा? मतलब ये हुआ कि हम ना घर का ना घाट का. और हेल्थ इंश्योरेंस तब लेना चाहिए
जब तुम फिट एंड फाइन हो, ना कि जब जरूरत पड़े तब इंश्योरेंस डिमांड करो। उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी तो आपको खड़ा भी नहीं करेगी, क्योंकि वो सामने से दिख रहा है इसके खर्चा होने वाला है, वो आपको क्यों देगा? क्योंकि वो चैरिटी करने नहीं बैठे, उनका बिजनेस है। वन मोर थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस ऑलवेज गिव चैरिटी फॉर सेल्फ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का मेडिक्लेम का प्रीमियम रिफंड नहीं होता, एक बार पे कर दिया भूल जाना। इसीलिए मैं उसको ये बताता हूँ कि चैरिटी फॉर खुद, और चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। या कुछ लोग यहाँ पे भगवान पे भरोसा करते हो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड करता हूँ। आप मंदिर जाते हो, भगवान के द्वार जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, कहीं भी जाते हो, कोई अपनी दक्षिणा पेटी तो कुछ पैसा डालते हैं। खुद से सवाल करो, जो भी पैसा वो पेटी में डाला है, भगवान के सामने जाने के बाद जो डिमांड करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है? बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप खुद से पूछो कितने एक्स मल्टीपल में होती है। Likewise, health insurance premium is a दक्षिणा पेटी फॉर योर फ्यूचर। और एक बेनिफिट होता है हेल्थ इंश्योरेंस होने की वजह से, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नौबत आ जाए, आप जल्दी रिकवर भी होते हो। जैसे मेगा मैम बता रही थी कि ह्यूमन साइकोलॉजी है और थॉट प्रोसेस, क्योंकि अभी दिमाग में रहता है मुझे पैसा नहीं पे करना है, शांति रहती है वहां पे। और जब तुम्हें जेब से पे करना है ना, और 4 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर होता है, कहाँ से आएगा पैसा। तो यहाँ पे इमरजेंसी की बात करें थे, तो सबसे पहला प्लान होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके साथ साथ में पॉसिबल गो फॉर द लाइफ टर्म इंश्योरेंस, ना कि एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है लाइक अवर कार का स्टेपनी। हमारे कार के चारों पहिए ठीक होते हैं, फिर भी हम फिफ्थ वाला व्हील कैरी करते हैं। रीजन बिहाइंड फियर फैक्टर, कहीं पंक्चर हो जाए, कहीं खराब हो जाए, व्हील चेंज करना पड़े। बट वो कार में तो मैं भी होता हूँ, मेरे साथ कुछ हो जाए तो व्हाट अबाउट माय डिपेंडेंट्स, व्हाट अबाउट माय फैमिली? तो गो फॉर द टर्म इंश्योरेंस, दैट इज इन केस इमरजेंसी, फर्स्ट इज contingency fund 3x to 6x, and second health insurance. So this much from my side, madam. If anything else, most welcome. Thank you so much, sir. Interesting, very interesting, actually. Thank you. So, Megha, what actually happens when we are unprepared? Like when we have these emergencies and when we are unprepared, how does the human mind work and what should be done? We can term it like psychologically, as Sir said, we get affected when we are unprepared. Your panic takes over. Now, Sir also gave some examples. I would also like to add on that only. Now, you can think about medical expense, sudden medical expense, mostly, or even an unexpected educational expense, which most of us face. When there's no plan in place in such a situation, the mind goes into reactive mode. And in that state, what happens? We don't think clearly. Here we start reacting emotionally. And when we react emotionally, the decisions can end up being rushed or less effective. That's why we need to be prepared for such situation, as Bhamre sir said. Being prepared for such situation changes everything. It gives everyone that emotional stability. So we get emotional stability first if we are prepared, and of course, financial security naturally follows after that. Thank you so much, Megha. Actually, there is one movie line which is coming to my mind, "Darna Mana Hai." So it's like it's like डरावनी चीज है, आगे emergencies है, medical expenses are like touching the roof, our medicines are touching the roof. तो डरना नहीं है, प्लान करना है, एंड प्लान करके अच्छी तरह से सेव करना है. Correct. Very nice. Thank you so much for that, Megha. So, next, I would like to take up a question wherein, money decisions often involve family,
partners, or even workplace conversations. So, Hiralal sir, this question is to you. How Yes. important is decision clarity in long-term financial health? यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर एक बात है, यदि हम यहाँ पे फैमिली, पार्टनर्स, खुद का बिजनेस और योर सेल्फ थिंकिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग, बट ऑब्वियस है अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी इज द गॉड, एवरीबडी इज बिलीव ऑन द गॉड, गॉड के बाद इमीडिएटली आता है फैमिली। तो जैसे मैं कंटीजेंसी फंड की बात कर रहा था, इमीडिएटली यहाँ पे आ जाता है अपना फैमिली का खर्चा, क्योंकि कंटीजेंसी भी आ रहा है इन अ बैकग्राउंड, मंथली एक्सपेंसेस तुम्हारा आता है फैमिली रिलेटेड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनडायरेक्टली इज योर फैमिली। हम फैमिली के लिए जो भी प्लान करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी हर महीने की नीड होती है, वो कंसिडर करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हम अपना बिजनेस ग्रोथ के लिए सोचते हैं। क्योंकि आप हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड क्या होता है, इफ आर इन द बिजनेस, कि मेरा बिजनेस कैसा ग्रो होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा। इफ आई एम इन अ जॉब, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी अगले साल प्रमोशन होनी है, तो मुझे ये साल क्या करना पड़ेगा, मुझे स्किल्स क्या ऐड ऑन करने पड़ेंगे, मुझे बॉस के सामने कैसे प्रेजेंट होना पड़ेगा, जब मेरी एमआईएस मीटिंग हो कॉर्पोरेट में तो मुझे क्या प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना है। Likewise, always keep in mind your family expenses, family on priority. If you are in the business, आपके जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो भी इन्वॉल्व पीपल्स है, शायद आपका वो स्टाफ हो या बिजनेस पार्टनर्स हो, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, इक्वली आपको उनके बारे में भी सोचना है। क्योंकि वो लोग ग्रो होंगे, उनके लाइफ में कोई चेंजेस आएगा तो ही अपने लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि हम यही सोचते रहे कि उनसे मुझे खाली काम करवा के लेना है, या पार्टनर से तो उन्होंने खाली उतना अमाउंट या कंट्रीब्यूशन दिया है तो उनको कुछ लेना देना नहीं, ये सोच हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए इम्पैक्ट करती है। अगेन यहाँ पे इनडायरेक्टली वर्ड आएगा मेघा मैम की परमिशन से, साइकोलॉजिकल। आप अकेले के बारे में सोचने के बजाय सबके बारे में सोचते हो, डेफिनेटली विल ग्रो, क्योंकि वो मुट्ठी बन जाती है। तो यहाँ पे शुरू हम भगवान से भरोसा करके पहला प्रायोरिटी उन पे, दूसरा फैमिली आ गई। फैमिली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, ग्रो करना है तो इक्वली सबके बारे में हमें सोचना है। वी विल ग्रो टुगेदर, राइट? This much Absolutely. from my side, please. Yes. Thank you so much, sir. So, Megha, my question to you is, how can people build confidence in money-related conversations? Conversations ऊपर के करते हैं, outside हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं सबके साथ, but when it comes to the internal family, हम openly बैठ के नहीं करते हैं. So that is a very close space. So what can be done about this? To get that confidence with money, we need to permit ourselves to speak up. It's about letting yourself ask questions or clarify doubts, or you can even say no when something doesn't feel right to you. Like imagine you are discussing a joint family expense, like a vacation. If you don't speak up about your budget, you might agree to something that stretches you financially. But if you voice your concerns or ask questions and set boundaries, here the decisions become clear and it's less stressful. That's why I will say money confidence isn't about calculators or spreadsheets, it's about to build through conversations. Yes. Money conversations, I personally feel in Indian households are very important. True. होते नहीं है, बहुत कम होते हैं वो open conversations about money. Even financial literacy when it comes to small children. Why people are saying make financial literacy very very important बच्चों के साथ, माने started from a very young age, is because of this. So that these conversations make us invest better. That's all I can say, and talk better. Thank you so much, Megha.
So before we open the floor to questions, let's give the audience something practical. Yes. Hiralal ji, one habit people should start this month from the financial point of view. One habit immediately. One healthy habit is supposed to be a regular investment. Maybe आप कंजर्वेटिव हो तो बैंक में आरडी करो, सोसाइटी में है तो भिक्षी लगाओ, थोड़े से ओपन माइंडेड है, एजुकेटेड है, अवेयरनेस बड़ा है तो एसआईपी स्टार्ट करो, बट स्टार्ट रेगुलर इन्वेस्टिंग हैबिट. अमाउंट कितने भी हो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 3000 becomes 30 years 1 crore, and that will give you 30,000 whole life as a pension. Okay. Thank you so much. And Megha, my question to you is one practical takeaway, one behavioral shift to pair with that, whatever Hiralal sir said. Okay, so as for me, I would like to say that one behavioral shift you can try this week is to have an honest money conversation. It could be with yourself, like checking how your money is doing, or it can be with your family also. Having that honest conversation is the real starting point for feeling confident, I will say. Okay, thank you so much. यहाँ पे मैं Yes. ऐड करना चाहूंगा मैडम, इफ यू परमिट. हाँ जी. Sure. मैम ने जो बताया अभी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट, आई विल से प्रिपेयर वन स्प्रेडशीट एक्सेल. मेरी इनकम फ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ पॉसिबल राइट डाउन ऑल योर बकेट लिस्ट एंड ट्राई टू लिंक योर बैलेंस. आपको रियलाइज होगा, हॉनेस्टली स्पीकिंग, आपका जो आउटफ्लो जा रहा है ना, वो अनप्लान आउटफ्लो मोर देन 30-40% अमाउंट वो कंट्रोल हो जाता है. Okay, thank you for that. So sir, abhi we are going to, both of you, Megha and Mr. Hiralal, we are going to open the floor to our audience. Yes. हमारे पास दो तरह के questions हैं, एक the live audience that we have with us, and we have a few questions sent to us by different people who couldn't attend the webinar today. So they sent us their questions and asked us to answer those questions. So first we will start with the people present over here. So for you out there, we are going to open the floor. Please understand that there are no silly questions because each and every question is important to you. Yes. Please use the chat or raise your hand or just simply unmute the mic and ask your question. We'll take as many questions as we can in the next 15 minutes. And then we can, go on to the next step. Yes. Let me start with Leela ji. Leela ji, do you have any questions for our experts? लीना मैडम म्यूट है. Leena ma'am, or anyone else over here who would like to unmute and ask some questions? Leena ma'am has unmuted. Yes. Yeah, the query, I'm asking this on behalf of my investors. The query generally asked by people is, हम लोग कमाते तो इतना है. There are a few families that I know. They earn around 2.5 to 3 lakhs per month. But even then they say कि हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है saving करने के लिए. Or the main question is they are quite hesitant about going in for term insurance and medical insurance. For medical insurance, the query is हमने कितना medical insurance लेना चाहिए. So these are a few queries which I usually tell them that you will have to write down your expenses for getting a better clarity कि आप बेवजह के खर्चे कहाँ कर रहे हो. And for medical insurance, I give them the priority that this should take the priority even over and above the saving that you are going to start, because that is going to eat away your savings in case you don't go for a medical insurance. I usually, for a family in Pune, I usually tell them कि आपको basic कुछ एक base sum insured लेना चाहिए खुद के लिए with a very good top up for a family
and total should go around to 1 crore or so. So, Bhamre sir, is this the right line of action that I am giving, or would you like to throw some light on this? राधिका मैम, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, मैम ने जो पूछा, ये सही बात है कि लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का पैसा बेकार जाता है, पर जैसा मेरे स्पीच में मैंने ऐड किया, लोगों को रियलाइज करके देना पड़ेगा कि भाई ये खुद के लिए चैरिटी है, एंड चैरिटी बिगिंस ऑलवेज एट होम। तो मतलब ये हुआ कि जब तक सामने वाले को रियलाइज नहीं होता है तब तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि मुझे हेल्थ लेना है, नहीं लेना है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ये होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरा ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से चल रहा है, बट अनसर्टेनिटी में, जैसे मैंने ऐड किया था थोड़ी देर पहले, कि भाई यदि जॉब चला जाए तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कहाँ से आएगा, नंबर 1। सेकंड थिंग, लीना मैम, आप ये ऐड कर सकते हो आपके इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई आप रिटायर होने के बाद आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कहाँ से आएगा? That's a very good, valid point. रिटायरमेंट के बाद तो नहीं होगा। सेकंड थिंग, आपको हेल्थ इंश्योरेंस तब मिलता है जब आप फिट एंड फाइन होते हो, क्योंकि मान के जो जैसे ना एग्जाम्पल, आज मुझे कोई बीमारी है या कोई हेल्थ इश्यूज आई है, कोई एक्सीडेंट है, सामने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देती है, और आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जाने के बजाय मेडिकल इश्यूज हम स्टडी करें, लोगों को रियलाइज करके देना पड़ेगा कि भाई लोग आप शिफ्ट्स पे काम करते हो, नाइट में काम करते हो, क्योंकि बहुत सारे केपीओ बीपीओ में आप देखो, दे पीपल वर्क इन द नाइट शिफ्ट्स एज पर अदर कंट्री, ओवरसीज यूएसए टाइमिंग्स, और अपनी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, क्योंकि बायोलॉजिकल साइकिल क्या कहता है, आपका 8 घंटा 10 घंटा रेस्ट कंपलसरी है, और आपकी बॉडी जब तक आप कमाना शुरू करते हैं उसके पहले इवनिंग 10 से सुबह 6-7 बजे तक सोने की आदत पड़ी है, और वही पीरियड में आप उनको जबरदस्ती कर रहे हैं कि नींद से जागो, तो बाय डिफॉल्ट आपको कोई ना कोई बीमारी होती है। 40-45 तक बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होती है, इसलिए कोई रियलाइज नहीं होता है, बट व्हेन बॉडी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, और वो जब सिग्नल देना चालू करती है, ड्रास्टिकली आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होती है। लास्ट वीक का एक मेरा एग्जांपल है, मेरे एक क्लाइंट है, अराउंड 40-42, डॉक्टर ने बताया भाई तेरे 98% ब्लॉकेजेस है, क्या रियलाइज करोगे आप एट द एज ऑफ 42 98% ब्लॉकेजेस? ये हमें उनको रियलाइज करके देना पड़ेगा मैडम। दूसरा, इंडिया में ये एक आदत हो रही है कि पीपल डायबिटिक ज्यादा हो रहे हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस के लिए ये बताना पड़ेगा कि हमारा फास्ट फूड हैबिट बढ़ रही है। अपना रोल इतना ही होगा लेना मैम कि हम रियलाइज करके दे सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बोले तो स्पून फीडिंग कर सकते हैं, ये चबाना पड़ेगा। Very true, very true. Like you are saying in Pune population is more than 25 lakh plus earning members. वो नहीं मानता है तो go ahead, find out different one. Don't stuck with them. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hope you got your answer, Leena ji. No, I got a very valid point. Retirement के बाद तो कोई corporate insurance काम नहीं करेगा, and that's a very valid point that I can definitely use to stimulate their Thank you views about taking the medical insurance at the right time. Thank you so much, Bhamre sir. Most thank you. Dipali, do you have any queries? Hi, good afternoon, everyone. Yeah, not queries exactly, but thanks for actually educating us about financial concerns. I am a big shopaholic, so I really needed this. And one thing which I really thought that Sir said that, yeah, it is not a very good idea to spend. We have to spend guilt-free and intelligently. True. And I think I understood it really well. Thanks for that. Thank you. And where are you from, Ms. Dipali? I'm from Faridabad. Okay, you're from Faridabad. Thank you. Thank you so much for joining us today. And thank you so much. Yes. So, yes, Mr. Parekh, do you have any questions? No, ma'am. Okay. Hello. Thank you so much.
Okay. Okay, we don't have any questions from Mr. Parekh. Miss Shilpa, do we have any queries from your end? Shilpa is on mute. Yeah. Okay. Pushpa, do we have any queries from your end? Good afternoon, everyone. Not a query, just a confusion after listening to everything. As a salaried person, what should I prioritize? Investment or focusing on insurance or savings? Bhamre sir, this question is for you. या पुष्पा मैम यहाँ पे क्लियर है जो मैं बेसिक्स में या 7 रूल ऑफ मनी में बात कर रहा था. हाँ, You spend your 50% earnings on your daily needs, monthly right. expenses. 30% amount on your wants. Be crystal clear in the need and want. Okay. Need compulsory है, want option है. और 20% amount of earnings suppose go to the investments. Right. यदि घर का आपका हाउसिंग लोन EMI चल रहा है तो वो want में जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा. ठीक है सर. राइट राइट राइट. तो आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा मेरी नीड्स कितनी है, वांट्स क्या है, और वांट्स में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. मेगा मैम बता रहे थे उस टाइम मैंने एक आपको स्प्रेडशीट के बारे में बात की थी. यू ट्राई टू फाइंड आउट योर अर्निंग्स, expenses and your bucket list goals also. If you required, we'll share with Radhika ma'am. She will provide you the template Excel. Sure. Thank you, sir. Thank you for that. Absolutely. Yes. Monali, do you have a chance to speak? No need to open the camera. Yeah, hello ma'am. Good afternoon all. I really enjoy the session, but I have one confusion that suppose I am thinking of investing my money. So what for I go? Like I go for this type or any other options we have to invest. Sir, this is for you, Bhamre sir. Yeah, understood. Can you repeat question or text your question? I'm not clarify properly. हाँ, बीच में कट गया था actually. Yes. Yeah. Hello. Now is it audible? Yes. Now you are audible, but बीच में break होता है. हाँ, तो मुझे ये पूछना था सर कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हूँ तो rather than SIP मैं कहाँ कर सकती हूँ, मतलब और अदर ऑप्शंस क्या है? ओके, यहाँ पे क्या होगा मैडम, आपने जो पूछा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम. हाँ. वेरी सिंपल. आपकी जो गोल्स है, आपकी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, वो यदि हमें मालूम होती है तो हम उसका टाइम फ्रेम कैलकुलेट कर लेंगे. आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद. If I can interrupt over here, sir, she was saying SIPs. SIPs के अलावा और कहाँ कर सकते हैं? मैं राइट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. या राइट. थैंक यू. तो वहाँ पे क्या होगा मैडम, यदि आपकी टाइम फ्रेम समझ में आ जाती है, आज से आपको 10 साल बाद, 12 साल बाद या 2 साल बाद चाहिए, तो 7 से 10 साल से ज्यादा टाइम होराइजन है तो SIP इज द वेरी गुड. ओके. बट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम 5 years या लेस देन 5 years है, तो आइदर यू गो फॉर द गोल्ड ETFs, RBI bonds, और इफ यू हैव एन NPS तो NPS Tier 2. ओके. आई एम नॉट सेइंग Tier 1, क्योंकि Tier 1 में पैसा ब्लॉक होता है टिल द एज ऑफ 60, बट Tier 2 यू कैन विड्रॉ मनी लाइक इन अ सेविंग अकाउंट एनी टाइम. ओके सर. और Tier 2 में भी आपके पास और एक चॉइस होता है, इक्विटी पोर्शन चूज करना. आपका टाइम फ्रेम 5 साल से कम है तो यू चूज इक्विटी पोर्शन मैक्स 10%. 90% आपका डेट में जाएगा, तो आपका जो रिटर्न्स आएगा वो बैंक FD से ज्यादा आएगा. इट विल कम्स अराउंड 7 to 9% पर एनम. ओके. तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे 2 चीजें आएगी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन. less than 5 years. I don't want less to than go 5 for years है तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, either you go with the gold ETFs, gold bonds, RBI bonds, okay, NPS Tier 2.
Okay. Thank you. और Thank you. कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको इक्विटी में भी जाना है तो म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी फंड, Okay. राइट? Yes. Yes. Right. थैंक यू. Thank Thank you. you. Thank you so much, Monali. Megha, we have okay, I think all of us who are live, we are done with our questions. Do we have anyone else who are interested in asking a question, please? Okay, right. So, Megha, this one is for you. We have a question from Prakash actually. What do you call? He sent a message saying that he lives in a joint family and he has issues starting a money conversation with what do you call his family. It becomes very difficult when the parents are there and the kids are there together. So he's saying, how should we do this? How can we initiate that conversation? Uh, okay. Now, see, what happens is uh, most people think that money is a very sensitive issue. Yes, and somewhere their emotions are also connected to that, and they try to avoid having this type of conversation. So, we should not take it in a wrong way. We should not consider that they do not care about it. Hmm? So, they are supposed to uh, take into confidence their partners, their family members. They could sit together and very clearly they can discuss whatever the things or issues they have. If they will make it clear, so whatever the guilt, sometimes there is a guilt that I do not earn a lot or I don't have that much money. So, how should I have this type of conversation? So, if they will try to take out that guilt from their mind, so that will become easy for them to have that conversation with their family members and, of course, with their wife or their parents. So it will be very easy for them. They should not have that guilt somewhere or doubt that how should I have this type of discussions in front of my family members, because this is a very sensitive thing for me, I can't do anything related to this. So if they will be clear and they will open up in front of their family members, somewhere their family members will also help them to have these type of conversations and things will become easy for them. Okay. Thank you. Thank you so much. So, hichkichahat is the correct word, I guess. We have to let go of that. Yes. Hiralal sir, this is a question actually from my side. Many a times when we ask people to invest, okay, they feel they are already late when it comes to saving money, and they keep on saying that what do you call, late ho gaya abhi, it is too late for saving. So is it ever really too late to start? प्रैक्टिकली बोलो तो जिस दिन जागो उस दिन सवेरा. Exactly. क्योंकि जो लेट हो गए समझ में आ रहा है, बट वो तो टाइम चले गया है ना. वी कांट डू एनीथिंग. क्या कर सकते हैं? ज्यादा जो लेट होने की वजह से कॉर्पस बनने वाला था फ्यूचर में, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं, एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं. और वो अमाउंट बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमें जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कम करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू प्लान योर अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस. ओके. तो एज सच लेट कुछ नहीं होता है, बट इफ यू स्टार्ट अर्ली डेफिनेटली यू आर बेनिफिशियल. Okay. Okay. Yes. Yes. So another question, what do you call, for you, Megha? How can families reduce tension or conflict around money decisions? Again, I would like to say something connected to what I said earlier also. Here, always families, or I can say the family members who are very close to you, they can reduce your money related tension by shifting it
from argument to conversation. By having proper conversations with your family, I should say like this. This means you are supposed to talk about your priorities before the problem arises, or listening without blame to your family members or your partners, and making decisions together instead of doing it under the stress. So, somewhere it will really solve your problems or your decisions, whatever you are going to have with your family, and it will reduce the tension also. Okay. Thank you. Thank you so much. Sir, another question from one of the people, what do you call, was asking is, how often should we review our finances? वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन. मैं एक्चुअली मेरे स्पीच में मैं स्किप कर गया, भूल गया. लाइक इफ आई आर इन अ जॉब, मेरा साल में एक बार रिव्यू होता है कि अरे बोलो या रिवीजन बोलो. लाइक वाइज मेरी इन्वेस्टमेंट का रिव्यू साल में एक बार कोई भी हालत में होना ही चाहिए. बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं ये मेरा हार्ड अर्न मनी है. लाइक इन अ जॉब और इन माय बिजनेस, हम हर साल अपने प्लान्स बनाते हैं, रिव्यूज करते हैं, क्या रेज आता है. तो मेरा फंड्स, मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, ये साल में एक बार देखनी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वंस इन ईयर. और यहाँ पे मैं सबको रिकमेंड करूंगा, आप जिनके थ्रू भी आप इन्वेस्ट करते हो, जो भी आपके एडवाइजर्स है, शायद उनका कॉल नहीं आए एक साल बाद, आप खुद उनको कॉल करो. क्योंकि उनके लिए तुम्हारे मेरे जैसे 100,000 इन्वेस्टर हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, बट यू डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप अकेले हो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए. एंड इनडायरेक्टली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माय एडवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी समटाइम्स. तो आंसर इज एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, और पॉसिबल है, आपको टाइम अलाउ करता है, आपका एडवाइजर फ्री है, ट्राई टू डू ट्वाइस इन अ ईयर. Okay. So I have one question for both of you. Same question for both of you. So what small change today can create a big impact over the next year? Ladies first. Okay. So, I will take it. Here, I would like to say that a small change today is like you can track your spending or set one clear saving goal, as Sir said, something similar to that. Even small amount, when saved consistently, grows over time. And clarity about priorities you should have and consistent action can make a huge difference in a year anyhow. So you need to be consistent in that. स्मॉल चेंज मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा, यदि आज तक आपने आपका कंटीजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया है तो डू इट ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि इमरजेंसी बोल के नहीं आती है. Yes. सेकंड, यदि आपको आज के मीटिंग में, आज के सेशन से समझ में आया होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अमाउंट छोटी क्यों ना हो, समटाइम्स आई विल से स्टार्ट विद ₹100, क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट जैसे बोलते अगर बनता है, it makes a lot impact in a long run. If time permits, I'll give you one example here. Absolutely. मान के चलो आप सब लोग को मैं ऑफर करता हूँ, गिव मी ₹1 a day. हर दिन मुझे खाली ₹1 आपने देना है. 38 डेज के बाद, 30 दिन के बाद आप जो चाहो मैं आपको दूंगा. I am from Pune. If you ask me, give me the Bangalore in the Koregaon Park, I will ready to give you. Simple condition. दूसरे दिन देते टाइम मुझे डबल करके देना है. ₹2 का ₹4, 4 का ₹8. Are you ready? Audience. सोच रहे हैं सर. Start with the ₹1. 30 दिन आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ. Yes. Condition double every day. Yes. So, yes, two things over here I can tell you. One is that
We are having our feedback forms in your chat. If you like the session, please give your feedback. Second thing, we are always available. Our contact numbers are there in the toolkit that will be provided to you in the WhatsApp group after the session. Eh, our contact numbers are there. You want to contact us, you are most welcome. I Yeah. hope you like today's session. If anyone would like to unmute and give one takeaway Please. from today's session. Thank you, Hemal. We mostly expect from Lena madam. The key takeaway is being consistent. Start as small as possible, but be consistent right from the day you start earning. True. And give priority to the emergency fund. Like, give priority to all the aspects. First of all, saving, then your insurances, and then move to the large long term investments. True. Okay. And being consistent, that is the biggest and most important thing of all, because that gives you the real wealth that you achieve. The real compounding happens only when you are consistent. True. Okay. Thank you so much, Leena ji. Yes, Pushpa, discuss finance with family. Yes. Yes. True. Yes, that is very much required. Yes, that is very much required. Anybody else who would like to give their takeaway? Okay, thank you. So, as we close, I want to leave you with one thought. Financial confidence is not built in one day, but it starts with one clear step. Today's session was a collaboration between Vital Funds and Adalat Academy. A little bit about Vital Funds. Vital Funds focuses on helping individuals and families build long term financial security through informed, ethical, and practical investment guidance. If you're Correct. looking for structured support on investment planning or financial clarity, you can reach out to the Vital Funds team. Like I said, all the details are in the smart book that will be provided. About Atulit Academy, at Atulit, we work on communication, ownership, and decision making skills that shape both professionals and personal success because money decisions are also life choices. Yes. You'll find our contact details shared in the chat and in the smart book in the toolkit. Thank you for investing your time with us today. Wishing you clarity, confidence, and smarter money choices ahead. Please do reach out to us for any kind of a communication related issue. May it be corporate, may it be personal, and may it be at work. Have a wonderful day. It's a sign off from us today. Thank you so much, Hira Lalji, for being present today. It was Thank you. wonderful having you as our guest. Many, many financial inputs we got today. Thank you so much, Megha. The right kind of mindset that is required to what you call start with finance is what we've learned today. So it's a wrap from our side. Thank you, everyone. Goodbye. See you in the next session. Thank you. Thank Thank you you very so much. much. Thank you, everyone. Have a good day. Bye. Bye bye. Bye.